Hello every students. Today our topic is Python programming and this is Python programming part 4, and in this lecture we are going to discuss some output based question answer. So let's take them one by one. This is question number 1. Predict the output of the following code segment. Predict the output of the following code segment. In first line we can easily see that x is equal to 10. It means 10 is assigned to x. In second line, x is equal to x plus 10. In this case, x is equal to 10 plus 10 and it becomes 20. So in line number 2, x is equal to 20. Next, line number 3, x is equal to x minus 5. This means x is equal to x minus 5. This means last value is here. As we know that x is equal to 20. So in line number 3, x is equal to 20 minus 5, and 20 minus 5 is equal to 15. So in line number 3, x is equal to 15. Always remember that we consider the latest value. So line number 1, x is equal to 10. In line number 2, x is equal to 20. In line number 3, x is equal to 15. If we use the value of x in line number 4, then latest value will be used, and in this case x is equal to 50 will be printed. So we want to print that statement right now. Print x, then final answer is 15. Now next line number 5. Here is a multiple assignment, and as we know that up to line number 4, x is equal to 15. So I think till line number 4 I think there is no doubt at all. Line number 5, x comma y, multiple assignment is there, x comma y. So x is equal to x minus 2. It means 15 minus 2. 15 minus 2 means 13, and y is equal to 22. So y will equal to 22. In multiple assignment, as we know that first value assigned to first variable and second value assigned to second variable, from right to left, and assignment is always from right to left. So 5 is assigned to x, and if we say that x comma y is equal to x minus 2 comma 22, then x value of x will be x minus 2 and y will be 22 after the execution of the statement. That is the final answer. So there are two print statements used in this statement, in this program code. So in this code, so for first print statement answer is 22, and for second print statement x minus y answer is 13 comma 22. Next, question number 2. Predict the output of the following code segment. This looks very similar to the previous one, and there is only a little bit difference here. You can see that x is equal to 10, x is equal to x plus 10, x is equal to x minus 5. These three lines are same, and print x, it is also same. So answer is same as far as print x is concerned. And line number 5, x minus y is equal to x minus 2 22. But in question number 2,
here x minus y is equal to x minus 2 comma x. So x will be equal to x minus 2, and as we know that x is equal to 15 here, because here x equal to 10, here x equal to 15, and here x equal to x equal to 10 in first line, x equal to 20 in second line, and x equal to 15 in third line. And in line number 4, 12x will be printed, that is 15 will be printed, and then x is equal to x minus 2, so 15 minus 2 is equal to 13, so 13 will be printed. But here y is equal to x, so what is the value of y? Because x used 2 times here in left hand side as well as in right hand side, and first of all x will be 13, so y is equal to x. It means a value of x will be taken from here, and print x statement, x is equal to 15, that's why x will be printed here. So I think now it is very clear to all of you. In multiple assignment, value of x or y taken from the previous one, we cannot use the value of x and y in for any other variable within that statement. This is question number 2. Now question number 3, predict the output of the following code segment. Here it is a very tricky question. X is equal to 40, y is equal to x plus 1, so y is equal to of course 41. But in line number 3, x is equal to 20 and comma y plus x, y plus x. So this is a question of multiple assignments. So two values will be assigned to a variable x. So if you want to print the value of x, then there are two values, 20 and 81, because first of all x equal to 20 will be assigned, and after that x equal to y plus x will be assigned to x. So y plus x means 40 plus 41, that is equal to 81, so 81 will be printed. So if we want to print the value of x, then x contains basically two values, 20 and 21. And why it is so? Because in line number 3, two values are assigned to a single variable. Two values are assigned to a single variable here. And as far as y is concerned, there is only a single value, so y will be equal to 41. Next, part 4, x comma y is equal to 20 comma 60, x comma y is equal to x comma y minus 10 comma x plus 10, print x plus y. Now I think you are able to do this question. X is equal to 20 and y is equal to 60, so 20 will be assigned to x, and 60 will be assigned to y. I think is now no doubt as far as assignment are concerned in line number 1. But in line number 2, here is a multiple assignment, so there are 3 values, and remember that assignment is always from right to left. It means if we say that x is equal to 5, then 5 is assigned to x, and this is assignment operator, not equal to operator. So as far as first assignment, first value assigned is concerned, y is equal to x. So y is equal to x means x is equal to 20, so y will equal to 20. But if we want to print the value of y in line number 3, answer is 30. And why it is so?
because y will be assigned two values within a single statement. So we use the last value of y, and as far as last value is concerned, we can easily see that y comma x comma y is equal to x plus 10, and the value of x is 20, so that's why 30 will be printed when we want to print the value of y. This is the first value of y, this is second value of y, so always last value of y, last value in a multiple assignment will be printed. So always remember that when there is a same variable in a multiple assignment, then the value of last assignment value will be printed or considered after the execution of that statement. Now as far as value of x is concerned, x is equal to y minus 10 and y is equal to 60 here, so x is equal to 60 minus 10, so it will become 50. So x is equal to 50 and y is equal to 30 here. It is a very important question and of multiple assignment. So always remember that आपको ये बात हमेशा याद रखनी है मल्टीपल असाइनमेंट में कि जब हम मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं तो असाइनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू लेफ्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है हमेशा. दूसरा ये याद रखना है आपको कि फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू असाइन होगी. और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि अगर आप ऐसा करते हैं कि एक ही वेरिएबल है और उसको दो बार वैल्यू असाइन करते हैं तो जो लास्ट असाइन वैल्यू होगी मल्टीपल स्टेटमेंट में वो कंसीडर की जाएगी. जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि इसमें y कॉमा एक्स कॉमा वाई है, तो पहले y को x असाइन होगा, फिर y को x प्लस 10 असाइन होगा. लेकिन जब हम y की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 प्रिंट होगा, क्योंकि ये असाइनमेंट बाद में किया गया. तो जो असाइनमेंट सबसे लास्ट में होता है वो फिर कंसिडर्ड होता है आपका विद इन अ मल्टीपल असाइनमेंट. और तो इसलिए इसका आंसर 50, 30 हो, 50 स्पेस 30 आएगा. इसके बाद देखते हैं प्रोग्राम नंबर 5. a is equal to 3, b is equal to 5, print a is greater than b, print a is not equal to b, print a is equal to b. These are the relational operator. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें जानते हैं कि रिलेशन बताते हैं और आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है हमेशा, कोई वैल्यू या किसी नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा. अब इस केस में अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू बी 3 है और b इज इक्वल टू 5 है. ऑब्वियसली 3 5 से लेस है, तो इसमें फिर हम आंसर फॉल्स ही आएगा बिकॉज 3 इज लेसर देन 5 और हमें प्रिंट करना है, हमें चेक करना है a इज ग्रेटर देन b और a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो स्टेटमेंट आएगा फॉल्स. तो जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स आएगा जहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट की बात है. एज फार एज सेकंड स्टेटमेंट इज कंसर्न, print a is not equal to b, of course a is not equal to b, 3 is not equal to 5, so answer will be true. And for third statement, print a equal to b, a is not equal to b, 3 is not equal to, because 3 is not equal to 5, in this case a is equal to 3 and b is equal to 5, so answer will be false. ये कंडीशनल, ये आप रिलेशनल ऑपरेटर का एक एग्जांपल था कि अगर हमें कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करते समय वैल्यू प्रिंट कराते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, तो आपका हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है. स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा. और ट्रू और फॉल्स में हम ये चीज़ और है देखने की, इसमें ट्रू और फॉल्स में टी और एफ कैपिटल होते हैं हमेशा जब भी आंसर प्रिंट होता है. तो ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. थ्रू आउट द प्रोग्राम आप ये डिफरेंट वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5,
a comma b is equal to b comma a, print a b. अब इस प्रोग्राम में टू वेरिएबल्स हैं a और b. A and b are two variables here, and using multiple assignment we declare statement as a comma b is equal to b comma a. It means value of b will be assigned to a and value of a will be assigned to b, and this is called swapping of two values. So ये प्रोग्राम बन जाता है आपका, स्वैपिंग का भी प्रोग्राम बन जाता है. आप स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग दिस कोड. आपको इतना करना है कि वैल्यू अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू को ए और बी की वैल्यू को इनपुट कराइए, तो वट एवर यू वैल्यू प्रोवाइडेड बाई यू उसी के अकॉर्डिंग स्वैपिंग आपका परफॉर्म हो जाएगा. तो सिंस इस केस में अगर जैसे हम देखें a इज इक्वल टू b, इट मीन्स a will be equal to 5 after the execution of that statement and b will be equal to 3 after the execution of that statement. और जब हम प्रिंट कराएंगे तो फिर प्रिंट होगा 5,3 की वैल्यू जस्ट स्वैप हो जाएंगी. तो स्वैप होने के बाद जो आंसर आएगा जस्ट अपोजिट आएगा जो स्टार्टिंग में इनपुट था, इसलिए इसको स्वैपिंग बोलते हैं. तो ये स्वैपिंग का भी प्रोग्राम है और इसमें हमने देखा कि मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ किया गया है. मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ करते समय दो वेरिएबल लिए गए a कॉमा b, तो हम इक्वल टू b कॉमा a कर देंगे तो इसके अंदर स्वैपिंग हो जाएगी आपकी. नेक्स्ट देखिए, predict the output of the following code segment. Name is equal to Aman. Aman is a string, age 26, and print your name and age are name plus age. Aman is a string and age is also a string, and why we call that age is also a string, because value is given within a single quote. तो ये यहाँ वैल्यू 26 एक नंबर नहीं दे रखा. अगर ये नंबर दिया होता, सिर्फ सिंगल कोट नहीं होता, तो मार्क नहीं था. स्ट्रिंग को वी कैन रिप्रेजेंट स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल और डबल कोट बोथ. तो ये और है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर अमन एज इज इक्वल टू 26, तो 26 इज नॉट ए नंबर, इट इज ए स्ट्रिंग. सो व्हाट हैपेंस वी वांट टू ऐड टू स्ट्रिंग, बिकॉज इन दिस केस name plus age, we want to print name plus age. So message is quite clear, your name and age are. So I think within print statement this is string, so string will be printed your name and age are, and as far as value is concerned, name plus value of name plus age will be printed here. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को भी ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग भी ऐड हो जाती हैं, सिर्फ प्लस ऑपरेटर से, जिसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं. नंबर ऐड नहीं होते बल्कि स्ट्रिंग भी ऐड हो जाती है. तो ये स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर. अब फर्स्ट स्ट्रिंग अमन है, सेकंड स्ट्रिंग 26 है. अब 26 नंबर है हम कह सकते हैं, पर हम जब इसे 26 को सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग बन जाता है. तो यहाँ पर 26 एक स्ट्रिंग है और अमन एक स्ट्रिंग है, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर अमन 26 आएगा विदाउट एनी स्पेस. इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेशन बेसिकली आपका स्ट्रिंग को ऐड करने को ही कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं. तो यहाँ कॉन्कैटिनेशन हुआ आपका स्ट्रिंग का, तो ये हमने देखा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. अब यहाँ पर अगर नंबर होता और नंबर में स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते, इज इज पॉसिबल? आंसर इज नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर में स्ट्रिंग को ऐड नहीं किया जा सकता, और दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है. या तो दोनों आपके नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए या दोनों कैरेक्टर की या स्ट्रिंग की फॉर्म में होनी चाहिए, तभी ऐड हो सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या इंटीजर में फ्लोट वैल्यू ऐड हो सकती है? आंसर यस, बिल्कुल ऐड हो सकती है. इंटीजर में फ्लोट वैल्यू ऐड हो सकती है, क्योंकि दोनों ही नंबर है. दोनों का डेटा टाइप बेशक डिफरेंट है, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट हम कह सकते हैं कि दोनों का डेटा टाइप अलग है, कि वो इंटीजर है फ्लोट है, लेकिन है दोनों नंबर. तो नंबर में नंबर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, नंबर में स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम नंबर्स के अंदर भी इंटीजर में फ्लोट वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर फ्लोट आएगा. जैसे हम 2 और 5.1 को ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 7.1. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट. a कॉमा b इज इक्वल टू 12 कॉमा 13 एंड हियर वी वांट टू प्रिंट a प्लस b. तो यहाँ पर हम a प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश की है, लेकिन 2 टाइम्स.
तो थोड़ा सा स्ट्रेंज है प्रिंट स्टेटमेंट दिया। तो जहाँ तक इंटरनल प्रिंट स्टेटमेंट की बात है तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। प्रिंट a प्लस बी, a is equal to 12 and b is equal to 13, and 12 plus 13 as we know that equal to 25. So 25 will be printed as first print statement is concerned. तो इसके लिए तो आपका 25 प्रिंट हो जाएगा। एंड सेकंड के लिए क्या होगा आपका, अब आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट और दिया है और उस प्रिंट स्टेटमेंट में आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हो। तो नन एक कीवर्ड होता है आपका, नन इज ए कीवर्ड। तो जब हम सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो उसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना ही कोई स्ट्रिंग मिलेगी, स्ट्रिंग तो है ही नहीं, और वैल्यू भी नहीं मिलेगी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। तो ये नन शो करेगा और नेक्स्ट लाइन में शो करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो क्या होता है, तो 25 और नन प्रिंट होगा। लास्ट पार्ट पर आते हैं, predict the output of the following code segment and there is a conversion called implicit conversion and explicit conversion। इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। implicit conversion क्या होता है और explicit conversion क्या होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होती हैं और हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और हम इंटेंशनली उनको कन्वर्ट करते हैं किसी डेटा टाइप में, तो फिर आंसर उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। इसी को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। इम्प्लिसिट मीन ऑटोमेटिकली, तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है कि उसे किस डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना है, और हमेशा कन्वर्जन हायर टू लोअर होता है। हायर टू लोअर का मतलब है जिसकी रेंज ज़्यादा होती है, फ्लोट की डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इंट, तो आंसर हमेशा फ्लोट से इंट में जाएगा आपका, इंट से फ्लोट में कभी नहीं जाएगा आपका आंसर। तो ऑटोमेटिकली ये होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर ने अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर दिया, और रूल जो फॉलो होगा वो ये कि लोअर टू हायर कन्वर्जन होता है हमेशा। लो हायर टू हायर लोअर टू हायर कन्वर्जन होता है। अगर इंटर फ्लोट दोनों एक साथ हैं तो इंट का कन्वर्जन फ्लोट में होगा, फ्लोट का कभी भी इंट में नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट की डेटा टाइप की रेंज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंट। जिसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात है जहाँ तक, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ये है कि अगर हमें इंटेंशनली किसी वैल्यू के आगे इंट या फ्लोट लिख दें तो वैल्यू इंट या फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा इंट 5.1 और इस वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश अगर मैं करूं और इस वैल्यू का नाम दे दूं a, तो ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 5 प्रिंट होगी। और ऐसा क्यों होगा, ए की वैल्यू 5 क्यों प्रिंट होगी? ए की वैल्यू 5 इसलिए प्रिंट होगी क्योंकि आपने उसे इंटेंशनली कन्वर्ट किया इंटीजर डेटा टाइप में। तो इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्जन किया है तो इसको भी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, यानी आपने बताया है इंटरप्रेटर को कि आपको आंसर किस फॉर्म में चाहिए, जैसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए है कि आप ये प्रैक्टिस कर सकें, देख सकें, समझ सकें कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किस तरीके से होता है प्रोग्राम के अंदर, और किस तरीके से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं। तो फर्स्ट लाइन को अगर हम देखें, a इज इक्वल टू 3 प्लस 5/8, 3 प्लस 5/8। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा 5 डिवाइड बाई 8 वो एक फ्लोट आएगा, और आंसर भी एक फ्लोट आएगा। और जो फ्लोट आएगा तो फिर आंसर में आपको जब हम कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू जोड़ेंगे तो आंसर भी एक फ्लोट वैल्यू ही होगी। सेकंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं इंट 3 प्लस 5/8
तो आपने यहाँ पर इसमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है, यानी जो भी कैलकुलेशन है आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और याद रखिएगा आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन को किया है, पर्टिकुलर किसी वैल्यू को नहीं किया है, क्योंकि इंट के बाद आपने 3 + 5/8 है, तो कैलकुलेशन का हम आंसर जानते हैं। 3 + 5/8 का जो आंसर है वो 3.625 है, लेकिन जब आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे, तो आंसर 3 आएगा यहाँ पर। थर्ड देखिए, c इज इक्वल टू 3 प्लस फ्लोट 5/8। अब यहाँ 3 एक इंटीजर वैल्यू है, 5/8 अगेन एक फ्लोट वैल्यू है, और आंसर को फिर भी आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया इंटेंशनली, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी आपका यही वैल्यू शो करता है जो एक्सप्लिसिट करेगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्लोट और इंट को जब ऐड करेंगे तो आंसर फ्लोट में होगा, लेकिन यहाँ पर हमने फ्लोट को इंटेंशनली लिखा है, तो इसलिए इसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलेंगे। और 3 में आप फ्लोट वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर आपका एक फ्लोट वैल्यू ही आना चाहिए, तो अगेन आंसर आएगा 3.625। 4 में देखिए आप, e इज इक्वल टू 3 + 5.0 डिवाइड बाई 8। यहाँ आपने डिवाइड किया है, 5.0 एक फ्लोट वैल्यू है, तो दो इंटीजर डिवाइड करने के बाद अगर आंसर फ्लोट में आता ही है, हमने देखा 5/8 फ्लोट वैल्यू थी, लेकिन 5.0 एक फ्लोट वैल्यू है, तो आंसर तो ऑटोमेटिकली इंटीजर फ्लोट में अगर हम कंपैरिजन करें तो भी आपका फ्लोट ही आना है। तो फ्लोट में अगर हम इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर भी अगेन एक फ्लोट वैल्यू ही आएगी। 5/8 फ्लोट वैल्यू ही आएगी। और हम लास्ट की बात करें f की, तो इंट 3 + 5 डिवाइड बाई 8.0, तो फाइनली आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है कम्प्लीटली एक्सप्रेशन को। तो जो भी कैलकुलेशन निकल के आएगी वो एक ऑब्वियसली एक नंबर होगा, वो फ्लोट में होगा। जब कभी हम डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आंसर फ्लोट में ही आता है, लेकिन इंटेंशनली आपने बाहर इंट डेटा टाइप लिखा है, तो फाइनल कन्वर्जन इंटीजर टाइप की वैल्यू में होगा। अब यहाँ पर जब हम कोशिश करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट कराने की, ABCDEF, तो आंसर फिर इस तरीके से प्रिंट होता है। और स्पेस इसीलिए आया है क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हमने प्रिंट कराने की कोशिश की गई है। याद रखिएगा कि हम लाइन अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। अगर डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट होता और उसके अंदर हम प्रिंट कराने की कोशिश करते तो लाइन चेंज होती, पर इसमें विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट ABCDEF की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की गई है, तो इसीलिए इसमें आपका एक लाइन में ये डिफरेंट आंसर, डिफरेंट वैल्यूज़ ABCDE की वैल्यू प्रिंट होगी। इसीलिए इसमें वैल्यूज़ आपकी ए की वैल्यूज़ 3.625, बी की वैल्यू 3 एंड 3.625। आपको याद ये रखना है, दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये कि जब कभी भी कंपैरिजन होता है इंटीजर फ्लोट में किसी भी एक्सप्रेशन में, तो आंसर हमेशा इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट थिंग, जिसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। सेकंड, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम इंटेंशनली बताते हैं कि आपका डेटा टाइप क्या है। हम फ्लोट को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इंटरप्रेटर के को करने के लिए कुछ हमने पहले से गाइड कर दिया कि आपको आंसर इंटीजर में चाहिए या फ्लोट वैल्यूज में चाहिए। तो फिर इंटरप्रेटर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, आपका परफॉर्म करेगा और आंसर आपका आएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये कि जब कभी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर फ्लोट वैल्यू आता है, आंसर कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा तब भी। जैसे अगर हम लिखें 4/2 तो आंसर 2.0 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि आंसर फ्लोट वैल्यू ही रहेगा इसके अंदर। तो ये भी देखने वाली बात है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन थे कुछ। तो इसमें बेसिकली आपको फोकस ये करना है, 3 कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। फर्स्ट था इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, और असाइनमेंट ऑपरेटर में ही हमने देखा, सीखा, समझा कि जब मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन होती है और उसी ऑर्डर में सीक्वेंस में असाइन होती है। फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट प्रोग्राम इससे रिलेटेड था। सेकंड प्रोग्राम में हमने ये देखा कि वैल्यूज़ सेकंड प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम सेम है, सिर्फ ये है कि आपने एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आपने x की वैल्यू को 2 टाइम्स यूज़ किया है। थर्ड में
थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड ये है कि जब हम कभी भी किसी एक वेरिएबल को टू वैल्यूज असाइन करते हैं तो वो एरर शो नहीं करेगा, वो आंसर शो करेगा। एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन की जा सकती है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि जब कभी भी हम वैल्यू असाइन करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट के अंदर और एक वेरिएबल का रिपीटिशन होता है मोर देन वन टाइम्स, तो और इसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो जो लास्ट असाइन वैल्यू है वो हमेशा प्रिंट होती है। इस केस में y की वैल्यू लास्ट वैल्यू 30 थी, इसलिए 30 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम जब कभी भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, कभी भी नंबर के फॉर्म में नहीं आता। और रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये स्वैप का एक प्रोग्राम था जिसमें स्वैप किया गया है यूजिंग मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि कभी भी स्ट्रिंग में नंबर को ऐड नहीं किया जा सकता, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऐड किया जा सकता प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। प्लस ऑपरेटर सिर्फ नंबर को ऐड नहीं करता बल्कि स्ट्रिंग को भी ऐड करता है। और लास्ट था, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट अपना एज इट इज़ काम करेगा, और चूंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसने कुछ वैल्यू प्रिंट कर दी है, नेस्टेड प्रिंट है, तो फिर सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो एक नन वैल्यू को आंसर में शो करेगा। नन एक कीवर्ड है। और लास्ट था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब है कि मीनिंग है कि इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली अपने से कन्वर्ट करेगा, और एक्सप्लिसिट का मतलब है जैसा हम किसी डेटा टाइप से कन्वर्ट करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।